Good morning, student. Myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. Student, today's topic is measurement of personality. All scientific theories require measurement of the constructs underlying the field. Personality theories are no different, where we are developing theory of species typical behavior, of individual differences in behavior, or unique pattern of thoughts and feeling. We need to be able to measure the responses in question. The field of psychometric and personality assessment are devoted to the study of measurement of psychological constructs associated with personality. व्यक्तित्व मापन में मनोवैज्ञानिकों ने विशेष जोर दिया है। व्यक्तित्व मापन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके द्वारा व्यक्तित्व के लक्षणों या शील गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके द्वारा व्यक्तित्व को समझने, मूल्यांकित करने तथा विश्लेषित करने का भी अवसर प्राप्त होता है। व्यक्तित्व मापन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक मापक बनाए हैं। Some major methods of personality measurement are: first, personality inventories; second, projective techniques; and third, observational method. कुछ प्रचलित मनोवैज्ञानिक विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तित्व आविष्कारिका; दूसरा, प्रक्षेपण विधियां; और तीसरा, प्रेक्षण विधियां। Personality inventory is a self-report questionnaire. Means a survey filled out by the client that asks a series of questions about thoughts, interests, feeling, and behavior that is aimed at developing a general profile about a person's personality and lifestyle. This type of inventory can be used to give a counselor or therapist a sort of snapshot of who the client is inside, how they live, what's important to them, how they cope with life, etc. व्यक्तित्व आविष्कारिका व्यक्तित्व मापन में अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय परीक्षण है। इन्हें प्रश्नावलियां भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताओं या स्वभाव से संबंधित कुछ प्रश्नों की सूची होती है, जिनका उत्तर व्यक्ति को हाँ, नहीं या सही गलत में से चुनकर देना होता है। इन दिए गए उत्तरों के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिमाणात्मक ज्ञान यानी क्वांटिटेटिव नॉलेज प्राप्त हो पाता है। इसी कारण इसे आत्म विवरण आविष्कारिका यानी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज या कागज पेंसिल जांच यानी पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। Personality inventories. The first, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory is the most widely
widely used personality inventory, both clinical and non-clinical population, and is commonly used to help with the diagnosis of personality disorder. It was developed by Hathaway and McKinley. The MMPI, first published in 1943 with 504 true-false questions, an updated version including 567 questions was released in 1989 and is known as the MMPI-2. The original MMPI was based on a small limited sample composed mostly of Minnesota farmers and psychiatric patients. The revised inventory was based on a more representative national sample to allow for better standardization. Diagnosis of psychological disorder. It is developed in clinical diagnosis. It is now also used for occupational screening for careers like law enforcement and in college, career and marital counseling. Next, 16PF. The 16PF personality inventory factor is measure personality according Cattell's 16PF theory of personality. The 16PF can also be used by psychologists and other mental health professionals as a clinical instrument to help diagnose psychiatric disorder and help with prognosis and therapy planning. It provides clinical with a normal range measurement of anxiety, adjustment, emotional stability, and behavioral problems. It can also be used within other areas of psychology, such as career and occupational selection. मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका व्यक्तित्व मापन की एक प्रचलित मापनी है। इसका निर्माण हथावे तथा मैकिनले ने किया है। इसके द्वारा एक से अधिक व्यक्तित्व आयामों का मापन होता है जो शारीरिक अवस्था से लेकर सामाजिक मनोवृत्तियों तक व्यक्तित्व संबंधी सभी पक्षों से संबंधित होता है। इसी कारण इसका नाम मिनेसोटा बहुपक्षीय आविष्कारिका यानी MMPI रखा गया है। इसमें व्यक्ति को प्रत्येक एकांश का उत्तर 3 विकल्पों सही, गलत और कह नहीं सकता यानी ट्रू, फॉल्स एंड कैनॉट से में से चुनकर किसी एक उत्तर को देना होता है। इन तीनों विकल्पों में प्राप्त उत्तरों का स्कोरिंग किया जाता है। इसके द्वारा 10 प्रकार के मानसिक रोगों का मापन होता है।
इसमें कुल 10 मापनियां हैं। इस आविष्कारिका को भरने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार MMPI पर अधिक प्राप्तांक असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी तथा कम प्राप्तांक सामान्यता यानी नॉर्मलिटी का इंडिकेटर होता है। यह एक वैध यानी वैलिड तथा विश्वसनीय यानी रिलायबल मापनी है। दूसरा, कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, कैटल्स 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर यानी 16 PM। यह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आविष्कारिका है। इस व्यक्तित्व आविष्कारिका या प्रश्नावली का निर्माण R.B. कैटल ने किया है। इस आविष्कारिका में कुल 187 एकांश या प्रश्न आइटम्स रखे गए हैं, जो 16 व्यक्तित्व कारकों या लक्षणों का मापन करता है। इसमें व्यक्ति को प्रत्येक एकांश या आइटम का उत्तर हाँ, कभी कभी और नहीं यानी यस, ऑफ्टेन एंड नो में से चुनकर किसी एक उत्तर को देना होता है। इन प्राप्त उत्तरों का स्कोरिंग की सहायता से किया जाता है। अंत में इस पर शील गुणों की व्याख्या लो स्कोर्स एवं हाई स्कोर के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति विभिन्न शील गुणों पर कितना ऊंचा या नीचा है, इसकी झलक प्राप्त हो जाती है। इस आविष्कारिका की वैधता यानी वैलिडिटी तथा विश्वसनीयता रिलायबिलिटी काफी उच्च पाई गई है। इस प्रकार विभिन्न आविष्कारिकाओं के अतिरिक्त कुछ और भी व्यक्तित्व आविष्कारिकाएं हैं, जैसे आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनायर EPQ, कैलिफोर्निया व्यक्तित्व आविष्कारिका, कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंटरी CPI तथा बेल समायोजन आविष्कारिका, बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी इत्यादि। इन सभी आविष्कारिकाओं का उपयोग व्यक्तित्व मापन में होता है, जिनका चयन व्यक्ति अपनी समस्या या आवश्यकता के अनुसार करता है। Now we see the merits of personality inventories. Merits: first, high objectivity. Second, standardization of scoring minimize the risk of personal bias. Third, reliable. Fourth, valid. Fifth, greater sense of privacy and autonomy by using computerized self-report inventories. Next, can measure several different personality traits. Next, large group of subjects can be accessed. व्यक्तित्व आविष्कारिका के गुण: इसमें अनेक गुण पाए जाते हैं। व्यक्तित्व आविष्कारिका अथवा प्रश्नावलियों द्वारा व्यक्तित्व का मापन सरलता से कर सकते हैं। सेकंड, इसके द्वारा एक ही साथ एक से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन कम समय में कर सकते हैं।
अतः इसे व्यक्तित्व का शीघ्रगामी माप भी कहा गया है। तीसरा, इसके द्वारा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन होता है, साथ ही साथ किसी व्यक्ति के मानसिक बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं। चौथा, इनका प्रयोग व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करने में तथा परामर्श एवं निर्देशन, काउंसलिंग एंड गाइडेंस में भी होता है। Demerits of personality inventories. First, many applicants experience anxiety. Second, human mind is beyond any assessment and limit. At a times, one can behave completely different from original state. Third, negative attitude of applicant can alter the validity of test. Next, administration and interpretation can be done only by qualified psychologists. व्यक्तित्व आविष्कारिका के दोष, इनके कुछ दोष भी हैं, यानी लिमिटेशन। फर्स्ट, व्यक्तित्व आविष्कारिका द्वारा उत्तरदाता सही उत्तर न देकर गलत या फेक उत्तर दे सकता है, जिससे इसके परिणामों की विश्वसनीयता घट जाती है। सेकेंड, व्यक्तित्व आविष्कारिका का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही कर सकते हैं। अशिक्षित व्यक्तियों पर इसका उपयोग उचित रूप से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह शाब्दिक यानी वर्बल टेस्ट होता है। तीसरा, व्यक्तित्व आविष्कारिका द्वारा व्यक्तित्वशील गुणों का मापन अलग अलग होता है, जबकि व्यक्तित्व एक संगठित प्रणाली यानी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। अतः व्यक्तित्वशील गुण विशेषताओं का मापन अलग अलग करने पर व्यक्तित्व का समग्र रूप स्पष्ट नहीं हो पाता है। इस प्रकार उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी यह आविष्कारिकाएं यानी इन्वेंटरीज व्यक्तित्व के मापन तथा संबंधित शोधों में महत्वपूर्ण एवं अत्याज्य हैं। Projective measures, unlike objective tests, are sensitive to the rater's or examiner's beliefs. Projective tests are based on Freudian psychology and seek to expose people's unconscious perceptions by using ambiguous stimuli to reveal the inner aspect of an individual personality. Two of the most popular projective measures are the Rorschach test and the thematic apperception test. आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग अत्यधिक होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक सतह की दमित इच्छाओं एवं व्यक्तित्व संरचना का ज्ञान होता है। प्रक्षेपण विधियां, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आरोपण यानी प्रोजेक्शन के तथ्य पर आधारित है। इसमें व्यक्ति अपने मनोभावों एवं विचारों को दूसरों पर
आरोपित करता है यानी प्रोजेक्ट करता है, अर्थात एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रूप में दिखाई देती है। इन परिस्थितियों में व्यक्ति जिन सार्थक वस्तुओं को देखता है या विचारों को व्यक्त करता है, उसका विश्लेषण कर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की विधि प्रक्षेपण विधि यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। कुछ प्रमुख प्रक्षेपण विधियों में प्रमुख है रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण एवं मर्रे का विषय आत्मबोधन परीक्षण। First we see Rorschach ink blot test, which is developed by a Switzerland psychiatrist Hermann Rorschach. In this test, the 10 ink blots which were created by Hermann Rorschach dribbling ink on paper and then folding over the paper to create a symmetrical design. During the test, participants are shown the ink blots and asked what each one looks like. The test administrator then asks questions about the responses, such as which part of the ink blot was linked to each response. This test can be used to examine a person's personality characteristics and emotional functioning, and is thought to measure unconscious attitudes and motivations. रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण, इसका निर्माण हर्मन रोशाक नामक स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक द्वारा किया गया। इस प्रक्षेपण परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं, जिन पर स्याही के धब्बों की तरह के विभिन्न रूपों के चित्र बने होते हैं। इनमें 5 कार्ड काले सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट तथा शेष 5 कार्डों पर विभिन्न रंगों वाली स्याही के धब्बे होते हैं। ये चिकनी एवं निश्चित माप के आकार के सफेद कार्डबोर्ड से बने होते हैं। इन कार्डों को बारी बारी से एक एक कर निश्चित समय के लिए व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति इन कार्डों को देखने के लिए स्वतंत्र होता है। उसे जो कुछ दिखाई देता है उनकी अनुक्रियाओं यानी रेस्पॉन्सेस को लिख लिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रियाओं को स्थान यानी लोकेशन, निर्धारण यानी डिटर्मिनेंट्स, विषय वस्तु यानी कंटेंट तथा मौलिक अनुक्रियाओं एवं संगठन, ओरिजिनल रेस्पॉन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आदि 4 आधारों के आधार पर स्कोरिंग करते हैं। अंत में प्राप्त प्राप्तांक का विश्लेषण करके व्यक्तित्व के संबंध में समुचित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व के तीनों ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। यह एक संस्कृति मुक्त, कल्चर फ्री परीक्षण है। इसलिए रोशाक परीक्षण को व्यक्तित्व का एक्स-रे भी कहा जाता है।
Next, the thematic apperception test (TAT). The thematic apperception test is a type of projective test that involves describing ambiguous scenes. It was developed by psychologist Henry A. Murray and artist and lay psychoanalyst Christina De Morgan during the 1930s. The test is one of the most widely researched and utilized psychological tests in use today. The thematic apperception test, also known as TAT, involves showing respondents ambiguous pictures of people and asking them to come up with an explanation for what is happening in the scene. The purpose of the test is to learn more about the respondents' thoughts, concerns, and motives based on the stories they create to explain the vague and often provocative scenes depicted in the pictures. Subjects are asked to tell a story explaining what is happening in the picture, including the events that led up the scene, what is happening in the scene, what each of the characters is thinking or feeling, and what happened next. The complete version of TAT includes 31 picture cards depicting a variety of ambiguous social scenes that may include men, women, and children. Murray originally recommended using approximately 20 cards and selecting those that depicted characters similar to subject. Murray practitioners today utilizing between 5 and 12 cards, often selected because the examiner feels that the scene matched the client's need and situation. मर्रे का विषय आत्मबोधन परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण हेनरी मर्रे द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। यह एक प्रसिद्ध प्रक्षेपण परीक्षण है। इस परीक्षण में आगे चलकर मॉर्गन ने कुछ संशोधन किया। इस परीक्षण में कार्डों पर चित्रों के माध्यम से कोई दृश्य दिए रहते हैं जिसका आशय स्पष्ट नहीं होता है। इस परीक्षण में कुल 30 कार्ड होते हैं, जिनमें से 30 कार्ड पर कुछ चित्र बने होते हैं तथा एक कार्ड पर बिल्कुल खाली होता है। इसमें 10 कार्ड लड़कों एवं पुरुषों के लिए तथा 10 कार्ड लड़कियों एवं महिलाओं के लिए तथा 11 कार्ड सभी व्यक्तियों के लिए होता है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन करना होता है, उसके जेंडर एवं उम्र के अनुसार 31 कार्ड में से 21 कार्ड का चयन कर लिया जाता है। इस 21 कार्ड यानी 21 कार्ड में 20 कार्ड पर चित्र बना होता है तथा एक कार्ड खाली होता है। व्यक्ति को चित्रों को दिखाकर
कहानी कहने कहा जाता है। कहानी में लिखनी होती है कि घटना की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें किस प्रकार की संभावना दिखाई पड़ रही है। सब्जेक्ट कहानियों को जो लिखता है उसका विश्लेषण मर्रे के अनुसार 5 आधारों पर किया जाता है। नायक यानी हीरो, आवश्यकता यानी नीड, प्रेस, थीम तथा परिणाम यानी आउटकम। अंत में उपरोक्त 5 आधारों पर प्रत्येक कहानी का विश्लेषण करके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कहानी के विश्लेषण से व्यक्ति के कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन, संवेग यानी इमोशन, भाव यानी फीलिंग, दुश्चिंता यानी एंजाइटी, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज पर्सनालिटी मेजरमेंट के अंतर्गत इन्वेंटरीज एवं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।